આ દોષો સામાન્ય રીતે અને સરકારમાં જે માંગણીઓ મૂકવાની છે એનો હેતુ આપ સર્વેને વાતચીત દ્વારા સમજાવ્યો છે ત્યારે આપ અહીં જે જવાબદારીઓ નિભાવતા હોય છે તે જવાબદારીઓ મહિલાઓના કોઈ વડીલો સાથે સમાજના વ્યક્તિઓ સાથે અન્ય સમાજના વ્યક્તિઓ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની। मैं धिराण सहकारी मंडली का काम करती हूँ, जो छोटी छोटी बच्चों बहनों को उगरा के उनको लोन, किसी के रोजगारी के लिए काम स्थानिक लेवल पर इसका आयोजन करती हूँ मैं। और मेरी मंडली साबरकाठा में पूरा जिला में चल रही है। यहाँ से प्रांतिज से लेके ईडर तक का मेरा काम चल रहा है। और सरकारी मंडली बहनों के लिए ही है, इसका ये काम करती हूँ मैं। अपनी बहनों का काम इस तरह का रहेगा, इसलिए क्या है कि इसमें अगर जो मेरे मंडल में जुड़ी हुई है और आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा संपर्क करना, मैं फोन नंबर दे दूँगी आपको, ठीक है। कंपनी હોય છે જે સમાજનું બહેનોનું શોષણ કરે છે, એ શોષણમાંથી મુક્ત થવા માટે એમણે એક મંડળી બનાવી છે। હવે હું હસીનાબેનને દરખાસ્ત કરીશ કે આ પ્રોગ્રામનો બે શબ્દો બોલો। 22 માંગણી છે, 21 થી 22 માંગણી છે। હું એકવાર બધાને રિમાઇન્ડર કરાવી દઉં કે કેટલી પીડા થાય છે સમાજ દ્વારા, પરિવાર દ્વારા, વંચિત સમુદાયને ઘણી બધી પીડા સહન કરવી પડે છે। एकल नारी बहनों को विधवा बहन आई जाए, कोई तत्सा बहन आई जाए, निरुद्ध होए जेने कोई सपोर्ट ना होए, सहाय ना होए, ये 5000 रुपया आपकी एकल नारी संगठन तरफ से मांगी जाए। પછી પાલક માતા પિતા યોજનાનું નામ બદલી સરકાર માતા પાલક યોજના કરી દેવામાં આવી અને ઘણી બધી એવી બહેનો હતા કે જેમને કે ઘણા બધા સુધી ઘણા કોઈ પરિવાર ના હોય તો બીજાને ઉભા સમજવું પડે, बराबर। ये बाबत बता समझो लाइट बिल बाबते कि लाइट बिल जो कि लाइट बिल सरकार વધારે પડતો જાય, બરાબર ને। હવે આપણા પણ કોઈ ઇન્કમનો સ્ત્રોત પણ નહીં અને તો વૈકલ્પિક સ્ત્રોત પણ નહીં, એટલે કે સરકાર આપણે લાઇટ બિલમાં માફી આપે। આપણી આ છઠ્ઠા પ્રકારની યોजना साहब का फॉर्म भरा मैंने, तो अभी तक आए नहीं, 12 महीने हो गए मेरे। आपने कब फॉर्म भरा था? 1 साल ऐसा हो रहा है। આમનું 1 સાલ આ એકલ નારી બહેનો સંગઠનની કેમ જરૂરી છે? એકલ નારી બહેનોનું સંગઠન કેમ જરૂરી છે કે આ બેને 1 વર્ષ ફોર્મ ભર્યું, 1 વર્ષ ફોર્મ ભર્યું, અત્યાર સુધી તો પૈસા આવ્યા નથી, બરાબર ને। તો આમની અવાજ, આમની પીડા કોણ ઉપાડશે બોલો? 1 વર્ષથી આમના ઘરમાં પતિનો દેહાંત થઈ ગયું હોય, પતિનો ઇંતકાલ થઈ ગયો, બરાબર ને। 3 બાળકો હોય, કોઈ સપોર્ટ કરવાનું નહીં, 1 વર્ષ થઈ ગયું, અત્યાર સુધી એમને પેન્શન આવ્યું નહીં। એટલે આપણે એકલ નારી સંગઠનનું એક જ મહત્વ હોય કે આવી બહેનોની હેલ્પ કરે, બરાબર ને। આપણે આ બાબતે રજૂઆત કરશું। फॉर्म भी भर दिए पर पैसे 1 महीने आए, तो फिर पैसे आने के कदे आएंगे खबर भी नहीं पड़ती। बोलो हमने घर में कोई कमाणું नहीं और 3 વર્ષ ત્યાં છતાં પણ એમનો વિધવા સહાય મળી નથી, બોલો તો આમની પરિસ્થિતિ, આમની પીડા, આમનું દુઃખ કેવું હશે બોલો। એટલે તેમાં આપણે એકલ નારી સંગઠન કર્યું એટલું મહત્વ કે આપણે બધા સાથે મળી આવી બહેનો માટે કોઈ જવાબ નથી મળતો અને 3 વર્ષથી બિચારી એકલ વાળી છે, કામ ભરેલી છે, કઈ રીતે દોડે છે, પણ કોઈ ના કોઈ બી જગ્યાએ એને જવાબ નથી મળતો। એટલા માટે સમાજના વર્ગોના વિકાસ માટે ઘણું એવું સારું કામ કરે છે। તેમને ઘણા બધા વ્યવહાર જીવનનો તો એ ક્યાં ચાલે? પછી કોઈને એપન્ડીનું ઓપરેશન, કોઈ કોથરીનું ઓપરેશન હોય, કોઈને બિચારાના ડિલિવરીમાં ઓપરેશનનું કામ આવે, તો એ પણ ક્યાં ચલાવતા નથી। એ મારી વિનંતી છે। કોઈ ગરીબ માણસ હોય, એની દીકરીને જીઆરએલ આવ્યો હોય, એના જોડે પૈસા ના હોય, તો કે ક્યાં હોય, ક્યાં શું કામનું? એક પેન્શન માટે જ કામનું? એ મોટું દુઃખ હોય તો જ કામનું? અને ઘણા બધા નિરાધાર પણ છે જેના છોકરાઓ નથી, અને આપણે બધા રજડી રહ્યા છીએ। જ્યારથી બહેનો, ઘણી બધી બહેનોની હાલ અહીંયા વાત આવી
કે જે બહેનોએ વિધવા ફોર્મ ભર્યા છે પણ એના હજી સુધી કોઈ જવાબ આવ્યો નથી, એ હું ક્યારની બેઠી બેઠી સાંભળતી હતી. તો આપણે દર એક ગામમાં એક ગ્રુપ બનાવવાનું છે, જે બધી બહેનો અને જે ભાઈઓ આપણા સાથે બધા જોડાયેલા છે, આપણે બધા એક ગ્રુપમાં રહેશું અને જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ બહેનને કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો આપણે બધા સાથે મળીને લડશું. અને તે બધું આપીને આવી જશો. જે ઓનલાઈન કામ કરતા હોય કે પછી પંચાયતમાં હોય એમને ફરીથી આપણે પૂછવા જતા નથી અને ઓર્ડર આવે છે ને એ પણ ખબર નથી હોતી કોઈને. તો જ્યારે વિધવા પેન્શનનું ફોર્મ આપણે પાછું માંગવા જઈને તપાસ કરવાનું હોય છે. આપણે ખાસ કરાવીએ છીએ કે આપણો आपका भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता. तो 1250 की पेंशन बढ़ानी चाहिए कि सरकार को कि नहीं बढ़ानी चाहिए? तो एकल महिला अधिकार संगठन ने इसकी मांग रखी है कि इसकी पेंशन 5,000 रुपये होनी चाहिए कम से कम, बल्कि इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए. महंगाई रोज बढ़ रही है. गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया, तेल, आटा, चावल कितना महंगा हो गया. तो अगर आपके घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे अपना गुजारा? इसके लिए एकल महिला अधिकार संगठन जब शुरू हुआ तब उसने 3 जो और डिमांड थी वो सरकार के सामने आप लोगों की तरफ से रखी थी. इसी हॉल में सम्मेलन हुआ था और 3 मांगे सरकार ने पहले हमारी पूरी की कि पेंशन आजीवन करने में आए. इस मांग को लेकर हुराबेन और लोग कलेक्टर के यहाँ गए थे. सर्टिफिकेट मांगा जाता था, उसके मुद्दे में कार्रवाई हुई. तो आज जब हुराबेन ने इन मांगों को लेकर हम सबको जमा किया है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी 20-22 मांगों के लिए हुराबेन का साथ दें, एकल महिला अधिकार संगठन के हाथ को मजबूत करें, ताकि जैसे पहले मांगे पूरी करने के लिए इन्होंने गांधीनगर तक कोशिश की अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर. विकलांग और निराधार लोगों की पेंशन भी 5,000 की जानी चाहिए. एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि कोई अगर विकलांग है, दिव्यांग पहले से है और वो बाद में विधवा होती है तो एक पेंशन उसकी बंद कर दी जाती है, जबकि उसके लिए तो और दिक्कत पैदा हो जाती है. तो ऐसे लोगों को दोनों पेंशन मिलनी चाहिए, या सरकार इसमें और कोई रास्ता निकाले कि ज्यादा उसको पैसे मिले, क्योंकि एक तो वो विधवा भी हुआ कोई और विकलांग भी है तो उसके लिए और ज्यादा तकलीफ है. तो विकलांग लोगों की भी पेंशन बढ़े,
જાતે 2013માં વિધવા થયેલી છું. હજુ સુધી મને પેન્શન યોજનામાં બેઠીમાં સમાવેશ તો કરી પણ જે તાલીમ સહાય જે દેવામાં આવે છે ને તાલીમ મને પણ મને એવા ઘણા તાલીમો એવા છે તો 12 વર્ષ અરે 12 મહિના હા હું 2013 છું. 2013માં મારા હસબન્ડની ડેથ થઈ ગઈ. કાચા મકાનમાં રહી રહી છું. મેં હજી કચ્ચાની એક દીવાલ બની છે, એક દીવાલ હજી કાચી છે. 2012નું મારું પંચામતમાં ઠરાવ છે ગ્રામસભાની મિટિંગમાં, પણ હજી સુધી મારા ઘરનો લાભ જ નથી. તમારી યાદી છે કઈ કઈ બહેનો ક્યાં રહે છે? કોઈ યાદી છે? हमारे घर वाले गुजर गए हैं, हमारे को भी कोई साल नहीं। मैं हुरा हूँ, साबरकाठा से, एकल महिला अधिकार संगठन कन्वीनर। इसमें विधवा बहनें हैं, तख्ता बहनें हैं, विकलांग है और निराधार। मुद्दे ये हैं कि विधवा बहनों के 1250 में उनका पूरा नहीं होता। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उनको 5000 पेंशन मिलनी चाहिए। कुछ पालक माता पिता योजना जो है उसको बदल के सरकार पालक माता योजना करे, तो उनके बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो सके। और आगे जो विकलांग है, निराधार है, तो उनको भी लेके हमारी 21 मांगे रही है। और आज 500 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ आई थी और हमने उनके साथ में बातचीत भी की है। जो हमारी जो मांगे हैं उनको लेके हम आगे ऐसे ही लड़ते रहेंगे। विधवा बहनें जो एकल बहनें हैं उनके पास में मकान नहीं है, उनका शौचालय नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो विधवा बहनें महंगाई को लेके बहुत परेशान हो गई है। कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रही हैं और कितनी महिलाएं आपके साथ हैं? हमको ये लड़ाई लड़ते हुए 10 साल हो गए और 5000 से ज़्यादा हमारा महिलाओं का ग्रुप है और उसमें सभी एकल महिलाएं हैं। आप भी एक पुलिस है, किस तरीके से आपने अपनी बातें रखी सरकार के साथ? 2013 में जब मैं विधवा हुई थी, तो विधवा होने के बाद में जो मैंने देखा, तो मतलब जो कठिनाइयाँ मेरे सामने आई है, तो उसको मैंने बहुत मुश्किल से मैं उस कठिनाइयों से गुजरी हूँ। और जो मुद्दे हैं वो बहनों के कम हैं, मेरे खुद के ज़्यादा हैं। 2013 से मैं विधवा हुई थी, अभी तक मुझे गवर्नमेंट ने तालीम योजना में नहीं जोड़ा। ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको 45 साल की कम उम्र से हम तालीम में जोड़ देंगे। अभी मेरी 45 हो चुकी है, पर अभी तक मुझे नहीं जोड़ी है। और अगर मिलने जाते कि बहन आपकी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए हम आपको नहीं जोड़ेंगे। तो ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा बहाना है। हमको योजना में जोड़ना भी नहीं है और फिर योजनाएं बहुत सारी बार पर दे देते हैं, पर उसमें महिलाओं को जोड़ते नहीं है। अच्छा, ये सम्मेलन में कहाँ से होते हैं? ये लोगों ने भी अपनी बातें रखी, क्या कुछ मुद्दे सामने आए? ये सम्मेलन में खेड़ब्रह्मा तालुका था, तलब तालुका था, प्रांतित था, भिलोड़ा था, करीब 5 तालुका की बहनें थी। और ये साबरकाठा जिले की और भी अलग अलग जगह से बहनें आई थी और वो खुद के हक के लिए आई थी। बहनों ने यहाँ पर जो बातें बताई है, तो बहनें 10 साल से विधवा है, तो ना उनको विधवा पेंशन मिला है, उनको पीएम आवास में योजना से जोड़ा नहीं गया है, उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, शौचालय नहीं है। और काफ़ी जो ऐसी बातें सामने निकल के आई, विडो पेंशन बंद हो चुका है, तो वो सब समझने जैसी है। और हम उन बहनों का साथ लेकर आज हमने कलेक्टर ऑफिस में आवेदन भी दिया है और कलेक्टर सर को हम आज आवेदन दे के आए हैं। अगर हमारी ये बात का आगे कोई कलेक्टर सर इसका निकाल नहीं निकालेंगे, तो हम इस आंदोलन को लेके बहुत कम टाइम में गांधीनगर भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनपुरा गांव में रहती हूँ। मेरा नाम हसीना बेन अकबर खान है और मेरे को दिक्कत है कि मैं विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, पर विधवा पेंशन मेरे को मिला नहीं है। मेरे 12 महीने हो गए पर कोई जवाब आया नहीं है अभी तक, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे एक दिक्कत तो है, मुझे अंत्योदय कार्ड नहीं मिल रहा, इसलिए मैं ये एकलवाही महिला की मीटिंग थी उसमें जोड़ा ही हूँ। अभी आप यहाँ पर आए थे सम्मेलन में, क्या कुछ बातें यहाँ पर हुई?
यहाँ बातें हुई सब के जैसे कि 1200 रुपये महीना जो मिलता है तो 5000 करने के लिए बात हुई है। एक मुद्दा वो है, एक मुद्दा एकलवाई महिला के लिए है, एक मुद्दा अंत्योदय कार्ड के लिए है और एक मुद्दा है ये आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा इसके लिए है। सब ये हुराबेन ने मीटिंग रखी है इसलिए हम सब संगठन होके आए। 1200 रुपए इस महंगाई के दौर में कितना आपको मतलब लगता है कि ये आपके साथ? कुछ नहीं लगता। 1200 महीने में 1200 रुपये में क्या आता है? ना गैस की बोतल आती है, ना दूध का खर्चा निकलता है, ना घर का कोई खर्चा। शाक भाजी में भी 2000-2500 रुपये चले जाते हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांगे कि हमको 5000 रुपये मिलने चाहिए। 1200 5000 भी अच्छे हैं, फिर भी हम मांगते हैं कि 5000 रुपये मिलने चाहिए तो 5000 में हमारा कुछ खर्चा निकले। मुजाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज हिम्मतनगर में एकल महिला अधिकार संगठन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। एकल महिलाओं की समस्याओं को लेकर गुजरात में एकल महिला अधिकार संगठन काम करता है और ये संगठन एकल महिलाओं के जितने भी सवाल हैं उनको सरकार के साथ बातचीत करके और जनता के बीच में जागृति लाके हल कराने का प्रयास करता है। आज जो एक सबसे बड़ा मसला था कि एकल महिलाओं की जो पेंशन है वो सिर्फ 1250 रुपए है। 1250 रुपए में आज के इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता है, तो इस पेंशन को बढ़ा के 5000 किया जाए, निराधार की पेंशन 5000 की जाए, एकल महिलाओं को बस भाड़ा में राहत दी जाए, एकल महिलाओं को बिजली बिल में राहत दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर और एक और मांग उठी कि गुजरात में दारूबंदी का कड़क अमल किया जाए ताकि दारू से होने वाले नुकसान, उनके परिवारों में जो होने वाली टूटन, उससे बचाया जा सके। इन सारे इश्यूज को लेकर आज एकल महिला अधिकार संगठन का हिम्मतनगर में सम्मेलन हुआ। पूरे हिम्मतनगर जिले से 500 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर आई थी और इन महिलाओं ने सर्वसम्मति से अपनी 22 मांगों का एक मांग पत्र तैयार किया, जिसको कलेक्टर श्री साबरकाठा को देने गए और कलेक्टर श्री नहीं थे तो नायब कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इन सारे मुद्दों को सुना और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अतिशीघ्र इन मामलों पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सरकार की योजना है या जो योजनाओं के लिए जो सरकार दावा कर रही है, उसमें और जमीनी हकीकत में कितना अंतर आपको? बहुत अंतर है दोनों के दावों और जमीनी हकीकत में। विधवा पेंशन के लिए लोगों ने 1-1 साल 2-2 साल से आवेदन किया हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर महीने पेंशन नहीं आती, 3 महीने 6 महीने करके पेंशन खातों में आना, इसकी वजह से प्रैक्टिकली किसी भी व्यक्ति के खाते में अगर रूटीन में कोई अमाउंट नहीं आता है तो उसको अपना जीवन यापन चलाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा कि सभी लोगों को तत्काल पेंशन योजना से जोड़ा जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। जब सरकार आधार के जरिए सबको जोड़कर तत्काल सुविधाओं को देने की बात करती है, हमको एकल महिलाओं के मामले में ये देखने को नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि आवेदन करने के 2 साल 3 साल बाद भी आज यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी कि 3 साल हो गए उन्होंने आवेदन किया, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई का पता नहीं है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये बताती हैं कि दावे अलग है, हकीकत अलग है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एकल महिला कोई भी अगर विधवा होती है उसको तत्काल पेंशन दी जाए और उसको तत्काल सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। जैसे संगठन की कन्वीनर हुराबेन, उनको ही सरकारी योजनाओं से जोड़ने की जो योजना है उसमें अभी तक नहीं जोड़ा गया कभी। उनकी उम्र 45 साल हो गई, अब आप कह देंगे कि आप तो 45 साल से ऊपर हो गए, आप योजना के लायक नहीं है। तो ये एक हकीकत अलग चीज है, दावे अलग हैं। हम इसी ब्रिज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के साथ हम लोग बात करें और इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाएं ताकि इन मुद्दों को हल किया जा सके। मेरा नाम वहाब अंसारी है और मैं हिम्मतनगर से हूँ। ये एकल नारी बहनों का एक संगठन है। जो एकल नारी बहनों, अभी देख ले कि सरकार उनको 1250 रुपये पेंशन दे रही है। आज के महंगाई के जमाने में 1250 रुपये में क्या कुछ आता है इसके लिए? तो उनमें उनका ना परिवार का पूरा हो रहा है ना उनका खुद का पूरा हो रहा है। तो हमारी ये एकल नारी संगठन के द्वारा हमारी एक
सरकार से अर्ज है, विनती है, और हमने एक आवेदन पत्र भी दिया हुआ है कि सरकार उनको कम से कम 5,000 जैसा पेंशन दे, सरकारी योजना में उनका समावेश करे, उनको शहर में या गांव में उनके लिए प्लॉट दे और उनको घर बनाने के लिए की व्यवस्था करे, और जो भी बिजली का बिल आता हो उसके अंदर उनकी माफी दे सरकार। आवेदन पत्र भी दिया गया, क्या कुछ उसमें मांगे? बस यही मांगे थे कि उनका जो 1250 रुपया का जो उनका पेंशन आता है उसकी जगह उनको 5,000 करने में आए, उनका जो बिल आता है लाइट बिल उनके अंदर उनकी माफी में आए, सरकार की जो भी योजना हो उनको उनमें प्रायोरिटी देने में आए, उनका समावेश करने में आए, सरकार उनको गांव में शहर में जहाँ पे एकल नारी बहनें रहती है, निसहाय बहनें रहती हैं, उनका सरकार को उनको प्लॉट दे, उनको मकान दे, उनको बनाने के लिए पैसे दे, और जो भी सरकार की स्कीमें उनमें उनकी हिस्सेदारी उनके सुनिश्चित हो उनकी। अच्छा ये बताइए, गाँव में किस तरीके से दिक्कतों का सामना है सुविधाओं को करना पड़ता है, क्योंकि अब एक आदमी जो है कमाने वाला नहीं रहता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है, क्या कुछ लोगों ने बताया? यहाँ पर सम्मेलन में बहुत सारी बहनों ने बहुत कुछ बताया, एकदम उनका बयान सुनकर एकदम बहुत पीड़ाजनक है और एकदम दयनीय स्थिति इस तरह से। एक तो 1250 रुपये में उनका पूरा भी नहीं होता है, इस तरह वो भी लेने के लिए उनको तकरीबन, जैसे आज कोई बहन कोई विधवा होती है तो 6 महीना 2 महीना यहाँ तक तो हमारे को ऐसा जानने मिला है, कई महीने को 5-5 साल हो जाता है उनको पेंशन की प्रोसेस में उनको जुड़ा नहीं जाता। कुछ बहनों का 1 साल भी लगता है, कुछ बहनों का 6 महीने भी लगता है इस तरह से, तो बहुत पीड़ाजनक है। और हम लोग सीधी देखते हैं ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनका कोई सामाजिक कोई सपोर्ट नहीं है, ना उनका कोई सोशल उनके पास कोई वेलफेयर की कोई इनके पास स्कीम होती है, ना समाज उनको सपोर्ट करता है। तो ऐसी बहनें के लिए अगर सरकार आगे नहीं आएगी तो कौन आगे आएगा?